Hello, student. How are you? I hope you are all good. So today I am here with the most expected and most important PYQs of class 10 maths. Okay, these are asked many times in board exams. So जो है मैं इन्हें कराने की कोशिश करूंगा
Okay, student. Now we proceed to question number 5. In an isosceles triangle ABC, the base AB is produced both ways in P and Q such that AP into BQ equal AC square. So very first, you draw our diagram. C P Q A D. Okay, it is an isosceles triangle given. Triangle ABC is an isosceles triangle. And here AC equal BC. AC equals BC and AP into BQ. AP into BQ equal AC square. To prove triangle ACP equal triangle BCQ. Okay, student. Now we solve our proof. Here AC equal BC. AC equal BC given and AP into BQ. AP into BQ equal AC square. AC square, we take one AC in upon AP. AP upon AC equal, here we get AC upon BQ. And AC equal BQ, AC equal BC. है ना? AC equal BC. It is given that. So we write here A in place of AC, BC. Is AP upon AC equal BC upon BQ. And AC equal BC, then and angle ACB equal angle BCA. A angle CAB, sorry, CAB equal angle CBA, angle opposite to equal side, and angle CAB equal angle CBA. So by SAS triangle ACP similar triangle BCQ. Okay, hence proved. And it is done. Angle opposite to, here we write angle opposite to equal sides. Angle opposite to equal sides. Okay. तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरूर करिएगा. इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 6. Determine k so that 3k minus 2, 4k minus 6 and k plus 2 are consecutive terms of an AP. 3k से सॉल्यूशन है ये. सॉल्यूशन 3k minus 2, 4k minus 6 and k plus 2 are consecutive terms of an AP. So these terms have same common difference. So they have same common difference. Okay, so they have भाई कोई टर्म्स एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो वही थ्योरी हम यूज करेंगे. तो वी सब्ट्रैक्ट 4k minus 6 from k plus 2 and 3k minus 2 from 4k minus 6. So now we need D. So D1 equal have same common difference. Determine k की वैल्यू हमें चाहिए. तो ठीक है, 4k minus 6 equal 4k minus 6 bracket 3k minus 2 equals k plus 2
k plus 2 minus 4k minus 6. Okay, students. So 4k minus 6 minus 3k plus 2 equal k plus 2, and we open this bracket also, 4k plus 6. 4k minus 3k, k minus 6 plus 2 minus का 4 equal k minus 4k equal minus 3k, और 2 plus 6 8, 3k. So k plus 3k equal 8 plus 4. What we get? 4k equal 12, or 4 3 is 12. So we get k equal 3 is our answer. Is our answer. So please pause the video and note it down. Question number 6 is done. ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन हो रहे हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पी वाई क्यूज है, तो अच्छे से करिए, समझिए. ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, किसी अननोन वैल्यू कॉमन डिफरेंस वाले क्वेश्चन. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर प्रोसीड करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, इफ द नंबर्स 2 एंड, देखो सिमिलर क्वेश्चन है जैसे ऊपर था, सेम वही क्वेश्चन ये है. इफ द नंबर्स 2 एंड नंबर्स 2n minus 1 और 3n plus 2 और 6n minus 1 are in AP. Are in AP. So their common difference is same. Okay, so are in AP. Find n. Now we first try to find n. तो 3n, तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे, a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2. ओके, तो a2 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1 इक्वल 6n माइनस 1 माइनस a2 क्या है, 3n प्लस 2, 3n प्लस 2, 3n plus 2 minus 2n plus 1 equal 6n minus 1 minus 3n minus 2. Okay, 3n minus 2n and plus 2n plus 1 plus 3 equal 6n minus 3n, 3n minus 1 minus 2 minus 3. Okay, so we take minus 3 at LHS. So 3 plus 3 equals 3n minus n. What we get? 3 plus 3 6, 3n minus n 2n, 2 3 is 6. So n equal 3 again. N equal 3. Now read the questions and hence find the numbers. Find the numbers. So we have three numbers, 2n minus 1 equal 2 into 3 minus 1, 6 minus 1, 5. And 3n plus 2 equals 3 into 3 minus plus 2. 3 3 is 9 plus 2 11. And 6n minus 1, 6 into 3 minus 1, 6 3 is 18, 18 minus 1, 17. Okay, so it is our AP 5, 11 and 17. So numbers कौन से हो जाएंगे बच्चों? Numbers हो जाएंगे 5, 11, 17. And here we check it. 11 minus 5 6 or 17 minus 11 also 6. So it is our AP. It's 3 terms of given AP. So please pause the video and note it down. Now we proceed question number 8. Question number 8. Question number 8. Solve the following system of linear equation graphically. Okay, graphically. So 3x plus y minus 11 equals 0, and we write it as 3x plus y equal 11. Okay, so y equal 11 minus 3x, and here we write other equation x minus y minus 1 equals 0, and x equal y plus 1. Okay, now we put values of x to find values of y. So x equals 0, no 0 3, x equals 3. So y equal 11 minus 3 into में 3, so y equal 11 minus 9, so y equal 2. Okay, and x equal 4. So what we get? Y equal 11 minus 3 into में 2 into में 4. 3 4s are 12. 11 minus 12 equal minus 1. So it is our box x and y. X 3,
y2, x4 y minus 1. Okay, it is our first box, A and B. Okay, now x equal y plus 1, x equal y plus 1. It is our second equation. It is first equation. It is first equation and it is second equation. So we put values of y. So y equals 0. Then what we get? X equals 0 plus 1 equal 1. Okay. And y equal 1. What we get? X equal 1 plus 1. X equal 2. So here our second box, x, y, x1, y0, x2, y1. Okay. C and D. Now we draw our graph. 0, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and minus 5. X, x dash, y, y dash, 0, and minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Okay, minus. देखिए ग्राफ पे ए पॉइंट को रख रहे हैं 3 पे 2, 3 पे 2, ये हो गया. Find the numbers graphically and shade the region bounded by these lines and y axis. देखो इस लाइन के साथ और यहाँ जो लाइन क्रॉस सेक्शन मिलेगा उसको हमें शेड करना है. शेड द रीजन बाउंडेड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना. तो 3 पे 2, 3 पे 2, ये पॉइंट आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट ए. 3 पे 2 एंड 4 minus 1, 4 और minus 1. Here we get 4 minus 1 and we draw a line. We draw a line to passing through this point. Okay, it is point B, 2, 3. And now we draw another line, point C, 1 पे 0, 1 पे 0, ये point C, and 2 पे 1, 2 पे 1, ये point D. Point D. Okay. जो इसके क्वेश्चन हो चुके हैं तो मैं इसे हटा देता हूँ, ग्राफ दिखाना मुझे. तो पूरी लाइन करनी है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. इस रीजन को हमें क्या करना है? शेड करना है. ये रीजन शेडेड रीजन कहलाएगा. वाई एक्सिस एंड दिस 2 पॉइंट, दिस पॉइंट एंड वाई एक्सिस पे हमको क्या करना था? शेड. एंड ये -1 पे कट कर रहा है और यहाँ पे किस पे कट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो इसे ग्राफ पे बना के चेक कर लीजिएगा किस पे ये कट कर रहा है. वैसे ये पॉइंट सही होंगे, उम्मीद करता हूँ. तो ये इस टाइप का ही सॉल्यूशन आ जाएगा. ट्राइंगल ए बी सी, तो ए पी क्यू, तो ट्राइंगल ए पी क्यू हमें मिल जाएगा इस ट्राइंगल को शेप करके. तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. उम्मीद करके चल रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा बच्चों. अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मुझे दूसरा पर्चा लाना है. कहाँ भाई पर्चा कहाँ है? दूसरा पर्चा. In the given figure AP, AQ and BC are tangent to a circle if AB equal 5 AC. तो ये फिगर गिवन है, तो वो फिगर बना लेते पहले. पहले क्या बनाते हैं? फिगर बनाते पहले. It is our figure. A, B, C and it is P and it is Q. देखो ये बच्चों देखो ध्यान से, इस पे लिख दो M. तो PB इक्वल BM and QC इक्वल CM and AP इक्वल AQ. क्या है? AB. नाउ इन फिगर ठीक है. देखो सॉल्यूशन है ये क्या है? सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं. देखो वी नो
that tangent from external point are equal, external points are equal, then AB equal AP equal AQ, AP equal AQ, एंड देखो ये भी तो टेंजेंट है, PB इक्वल BM, MB, PB PB, PB इक्वल BM, एंड एक और टेंजेंट है देखो QC इक्वल CM, QC इक्वल CM, टेंजेंट है ये सारे। अब देखो यहाँ पे AP इक्वल AQ को इसको पिकअप करते हैं, AP इक्वल AP को लो, AP इक्वल PQ, तो AP क्या है, AP है AB प्लस PB, AB प्लस PB इक्वल AQ क्या है, AC प्लस CQ, AC प्लस CQ, ओके। अच्छा AB कितना है, AB 5 है, 5 प्लस PB, अब PB के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे BM, क्योंकि वी हैव नो PB, नो मेजरमेंट ऑफ PB, बट वी हैव BC, सो वी राइट PB एज BM, तो प्लस BM फ्रॉम हियर, ठीक है, इक्वल AC, AC 6 प्लस CQ, CQ इक्वल CM, CQ इक्वल CM, तो वी राइट CM इन प्लेस ऑफ CQ, तो CM, ओके। बट BM एंड CM, BM प्लस CM, तो BM इक्वल 4 माइनस BM इक्वल X, BM इक्वल X, तो CM क्या हो जाएगा, CM इक्वल 4 माइनस X, क्योंकि BC कितना है 4 है, तो BM इक्वल X है, लेट कर दिया हमने, तो नाउ वी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो 5 प्लस BM कितना है X इक्वल 6 प्लस 4 माइनस X, ओके, तो 6 को डाला है तो 5 माइनस 6 प्लस X, एंड 4 को भी डाला है माइनस 4 इक्वल माइनस X, तो 5 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 5, माइनस का 5 बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 5, तो 5 माइनस 5 इक्वल x माइनस का 2x, माइनस 2x, ये घट गया, तो x इक्वल क्या आ गया, x इक्वल आ गया 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड AP, तो AP कितना हो जाएगा, AP इक्वल AB प्लस PB, तो AP कितना है 5 प्लस 2.5 एंड वी गेट 7.5 सेंटीमीटर, ओके बच्चों। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नंबर 10 क्या है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC टचेस द साइड AB, देखो सिमिलर, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से देखें। पहले हम अपना फिगर ही बना लेते हैं, ये फिगर बन रहा है, ABCDEF। देखो बच्चों यहाँ पे गिवन है AB इक्वल 14, ये पूरा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, BC इक्वल 8, ये 8 सेंटीमीटर है, और AC आपका 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। देखो बच्चों इसमें इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फाइंड हमें करनी है, देखो पहले आप लिखो क्वेश्चन नंबर 10, पहले यहाँ पे जो गिवन है वो कंडीशन लिखनी है हमें, AB दिया है AB 14, तो AB इक्वल 14 सेंटीमीटर, BC इक्वल 8 सेंटीमीटर, और AC इक्वल 12 सेंटीमीटर, और वी हैव टू फाइंड AD, BE और CF, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, इन फिगर। नाउ लेट किसी एक को x ले लो, इसको x ले लो, लेट BE इक्वल x, नाउ BE x है, we know that tangent from external points are equal, then BE equal BD, भाई BE इक्वल BD, तो BE इक्वल BD इक्वल X, एंड BE इक्वल X, देन CE इक्वल CF, CE इक्वल CF इक्वल 8 माइनस X, ओके, बिकॉज BE प्लस CE इक्वल 8 सेंटीमीटर, BE इक्वल X, देन CE इक्वल 8 माइनस X,
नाउ yes ये 8 minus x है, 8 minus x, then it is also 8 minus x, 8 minus x, and it is 12 minus 8 minus x, it is 12 minus 8 minus x, okay, and it is also 12 minus 8, 12 minus 8 minus x, and it is x. तो AB कितना, AB कितना है, AB देखो यहाँ पे देखो, AB इक्वल कितना है, AB है 14 सेंटीमीटर, 14. अब AB क्या है, x प्लस 12 माइनस 8 माइनस एक्स, x प्लस 12 माइनस 8 माइनस एक्स इक्वल 14. तो x प्लस 12 माइनस 8 प्लस एक्स इक्वल 14. तो x और x 2x और 12 माइनस 8 प्लस 4 इक्वल 14. what we get 2x इक्वल 14 माइनस 4 यानी 10 और 5 या 10, x इक्वल आ गया 5. अब यहाँ पे पुट करना हमें, x इक्वल 5 आ गया, देखो x इक्वल 5, वी गेट x इक्वल 5. तो BE कितना हो जाएगा, BE, तो BE इक्वल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. एंड AB कितना हो जाएगा, AB 12 माइनस 8 माइनस एक्स. तो AB देखो AB कितना हो जाएगा, AB यहाँ पे निकाला था हमने 12 माइनस 8, बाद में काट गए 4, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स. तो 4 प्लस एक्स यानी 4 प्लस एक्स की वैल्यू 5 है, तो यानी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो गया AD इक्वल 9 सेंटीमीटर. ठीक है. अब CF 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 5 CF इक्वल 3, CF इक्वल 3 सेंटीमीटर. ओके भाई, CF 8 माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू 5 है, तो 8 माइनस 5, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया. तो ये क्वेश्चन बच्चों पर्टिकुलर हमसे वैल्यूज पूछी थी वो हमने निकाल दी. सो P and Q are point on side AB and AC respectively. देखो ये भी क्वेश्चन ट्राइंगल का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. A P Q D C, P by Q है ये वैसे. A P and Q are point on side AB और फिर ट्राइंगल ABC. AP इक्वल 2, देखो ये 2 सेंटीमीटर है. AP PB 4 है, PB ये 4 सेंटीमीटर. अच्छा PB 4, AQ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. अच्छा QC 6 है, QC 6 सेंटीमीटर. ठीक है. शो दैट BC इक्वल 3PQ इन ट्राइंगल ABC P and Q are points on side, ये क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, on AB and AC respectively. ओके. नाउ देखो AP अपॉन PB, देखो AP अपॉन PB इक्वल करना है 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2. ओके. नाउ AQ अपॉन QC, देखो AQ अपॉन QC इक्वल 3 अपॉन 6 एंड इट इज ऑल्सो 1 अपॉन 2, ऑल्सो 1 अपॉन 2. ठीक है. सो PQ अपॉन BC इज इक्वल 1 अपॉन 2 PC एंड 3 PQ, 1 अपॉन 3 होना चाहिए ना. AP इक्वल 2 सेंटीमीटर, AP इक्वल 2, PB इक्वल 4, PB इक्वल 4 और एक, तो भाई ये 1 अपॉन 2 आया इनका रेशियो, ये अपन ये इक्वल ये अपन ये तो ठीक आ गया. अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें कंप्लीट बेस की साइड, इस ट्रायंगल का बेस एंड इस ट्रायंगल का बेस. देखो जब हम पार्ट अपॉन पूरा बेस लिया जाता है तो हम इस पूरे को लेंगे AP अपॉन AB. तो AP अपॉन AB निकालें, AB, तो ये कितना हो जाएगा, AP अपॉन AB 2 है और AB कितना 2 प्लस 4 यानी 2 अपॉन 6 यानी 1 अपॉन 3. तो इसका रेशियो आ गया, तो ये 3 है, ये क्या है 3 PQ. वी हैव टू प्रूव, यहाँ पे 2 प्रूव में लिख दें, 2 प्रूव में क्या है, BC इक्वल 3 PQ, BC इक्वल 3 PQ, ये हमें प्रूव करना है, BC इक्वल 3 PQ. तो अब देखें, तो वो PQ अपॉन BC इक्वल PQ कितना है 1 अपॉन 3. भाई ये वाला रेशियो निकल गया 1 अपॉन 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, देखो BC इक्वल 3 PQ, ये हमने प्रूव कर दिया. ठीक है. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ठीक है. अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल क्या है M, देन show that
एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल साइन थीटा। ठीक है, नाउ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल एम। एम स्क्वायर माइनस 1 निकालो, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 कैसे निकलेगा? देखो एम की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसका स्क्वायर माइनस 1, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसे ओपन करो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगेगा, प्लस 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये आ गया। अब टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा कॉमन ले लें। देखो 2 टेन थीटा इधर है, 2 टेन थीटा इधर, तो 2 टेन थीटा कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? टेन थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचा? सेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यानी इसकी वैल्यू हो गई एम स्क्वायर माइनस 1 की। अब एम स्क्वायर प्लस 1 को निकालो, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल इसका स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पे क्या होगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, 2 सेक थीटा कॉमन ले लो, सेक थीटा, तो यहाँ क्या बचा? सेक थीटा प्लस यहाँ क्या बचा? टेन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। अब इसे अपॉन में रख दो, तो अपॉन में कहाँ रखें भाई? यहाँ रख दो। देखो इसके देखो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप यहाँ पे, तो एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 करना है हमें, तो ये क्या हो गया? 2 टेन थीटा, देखो यहाँ 2 टेन थीटा, ब्रैकेट में क्या है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे है 2 सेक थीटा, तो यहाँ पे है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, अच्छा इस पूरे ब्रैकेट से पूरा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा कट गया कॉस थीटा, क्या मिला? साइन थीटा। और देखो ये हमने RHS प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये 12 क्वेश्चन में लेके आया था, 12 क्वेश्चन मैंने करा दिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट PYQs हैं, उम्मीद करके चल रहा हूँ आपके समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस सीरीज़ में से, तो ये PYQs की सीरीज़ है, 12, 15 क्वेश्चन में लेके आऊँगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक।